Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, bache. How are you all doing? Good? Very well, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Utkarsh. Ma'am, I'm thinking that when we will come for offline classes, then also we have to enter the password, ma'am. Social. What? Ma'am, when we will come offline, then also we have to type the passwords, ma'am. Social. No, then you don't have to, bacha. Then you don't have to. And ma'am, earlier we used to say good morning like this. Good morning, ma'am. Now that habit has changed, I believe, right? Yes, ma'am. It's ma'am. Ma'am, but that happened, ma'am. That habit was very good. Oh, really? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. Good afternoon, beta. Ma'am, happy Ganesh Chaturthi. Yeah, Utkarsh, your voice is not clear. I don't know what you are saying. Please say it again. Ma'am, he is saying Chaturthi. Ma'am, ma'am, can you tell the pattern of your subject paper? Beta, pattern is the same for everyone. चलिए ठीक है. Still, I'll tell you. You have 1 mark questions, 3 mark. Okay. Same to you, Utkarsh. 1 mark questions, 3 marks questions, and 5 marks questions. All are subjective. No, nothing is objective in the paper. Right? I think I Ma'am, shared in one Ma'am, only mark question answers. only question answers. Ma'am, in 1 mark question, we can write only one word, right? Not the whole sentence. No, you cannot. You cannot. In 1 mark answers. Okay, Ma'am, even fill in the blanks will not come. बेटा हाँ कुछ नहीं आएगा. Ma'am, only question answer, long and short Long question and short, answers. very short, short and long. Ma'am, And ma'am, we have revisions- given the questions of half yearly exam in this exam. No. I mean, I didn't understand. You are saying half yearly exams तो हमारे हो ही नहीं रहे, periodic ही तो हो रहे हैं. मैम मतलब यही है ना हाफ ईयरली एग्जाम तरीके से. मैम पीरियोडिक तो मैम नाम के है. मैम है तो हाफ ईयरली. Yes, ma'am. Ma'am, when the half yearly will be? Ma'am, in November. Your बेटा term 1 exam आपके नवंबर में होंगे बच्चे. Okay, ma'am. ठीक है. चलिए. मैम map will be of how many marks? 5 marks का मैप है. I'm sharing the pattern with you. ठीक है. Okay. Just a second. हाँ. Ma'am, 1 mark, 3 mark and 5 mark question. हाँ जी. I'm sharing the format with you. Just a second. Huh?
See, your paper comprises of 3 parts. Why it is of 3 parts? Because 2 part of SST taught by Shashi ma'am, rest 2 by 2 different teachers, right? So part A comprises of history and geography. अभी आज के बाद दोबारा पैटर्न कोई नहीं पूछेगा मुझसे, ठीक है, कि कैसे क्या दिया है हमने. Am I clear? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. See, paper is divided into 3 parts. ठीक है. Part A, you have geography and history. In geography and history, the questions are mixed, right? It is not that geography questions are before history paper, history questions. They are all mixed. Okay. Now this part comprises of how many marks? 40 marks, right? Yes, ma'am. Right, class? Now the questions that are for 1 mark, you need to answer those questions in 50 to 20 words. मतलब मिनिमम लिमिट आपकी 15 वर्ड्स होगी एंड मैक्सिमम लिमिट आपकी 20 वर्ड्स होगी. Am I clear? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Fine. Very Yes. clear. Very clear, no? Then Yes, ma'am. you have, like, because A part has 2 parts in it, so you will be having 8 1 mark questions. 1 mark questions are 8. Ma'am, I can't see the screen. हाँ, मैम आप स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हैं क्या? स्क्रीन पे अभी फिलहाल तो कुछ नहीं लिखा है, बस सिर्फ 3 लाइंस लिखी हुई हैं इस पे. Then 3 marks questions. One mark questions are from question number 1 to question number 8. ठीक है. 3 marks की word limit, 3 marks questions की word limit आपकी not more than 50 words. ठीक है. Yes, ma'am. ठीक है. एंड ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 से लेके Ma'am, there will be no choice in questions, ma'am, like do any 8 or 9 from ma'am out of 10. Ma'am, ऐसी कोई choice नहीं होगी? नहीं ऐसा Ma'am, there would be no fill in the blanks and true false. नथिंग बेटा. हमने कहा तो सब्जेक्टिव का मतलब ही ये होता है कि टोटल सब्जेक्टिव है ना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12. 4 questions of 3 marks, right? Then 5 marks questions not to exceed not more than 100 words. ठीक है. एंड
इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो 13, 14, 15 है, और एक जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका मैप वर्क है, राइट, विच इज ऑफ 5 Ma'am, how many marks? 5 marks. ठीक है, Ma'am, the word limit is for all the subjects or only for yours? बेटा बाकियों का आई डोंट नो, बट मैंने अपने वाले में तो स्पेसिफाई कर ही दिया है, ठीक है Yes, ma'am. है ना। ठीक है, दिस इज Yes, द ma'am. पैटर्न, और ये सेम पैटर्न आपका इकोनॉमिक्स में भी है और सिविक्स में भी है। 4 questions of 1 mark, 2 questions of 3 marks, and 5 mark questions, again 2 5 mark questions, because each section comprises of 20 marks, right? Ma'am, we will be getting, ma'am, a political map, right? You will be getting a political map of India. मैम इफ मैम अगर फ्रांस का मैम मैप मार्क करने के लिए आता है तो मैम फ्रांस का मैप हमें मैम स्कूल से ही मिलेगा? हाँ, सब कुछ स्कूल से मिलेगा बेटा। ये जो मैप वर्क है इसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंबाइंड है, ठीक है। यस मैम। हाँ, ये अलग अलग नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों कंबाइंड है इसमें। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मैप्स आर कंबाइंड। अब मुझे लग रहा है इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना? यस मैम। राइट, यस मैम। बेटा वील बी डूइंग वर्कशीट। चलिए, वी हैव टाइम, तो वर्कशीट कर लें अभी। हाँ, Yes, ma'am. नहीं बेटा, ज्योग्राफी फेयर नोटबुक में करिएगा। लेट मी सी व्हिच वर्कशीट आई हैव टू डू विद यू। ठीक है, we were doing the worksheet, ma'am. व्हिच मैम वर्कशीट? ऑफ व्हिच चैप्टर मैम, फर्स्ट और सेकंड? अभी वही देखते हैं। आप हमें पहले बताओ, आपने लास्ट टाइम कौन सा वर्कशीट करा था? तरन, गुड मॉर्निंग। मैम ऑफ चैप्टर सेकंड। मैम चैप्टर सेकंड। Good morning, ma'am. हाउ आर यू? Good गुड, ओके। and tensed. I know everybody is tensed. What to do, beta? Can't help it. See, students and tensions go hand in hand, even for teachers also. Tension is something that you cannot do away with, but then yes, you can. Don't be tense. No, why tense unnecessarily? As it is, see, 9th and 10th will be coming for the exam one day. 11th, 12th will be coming for the other day. So all the students will not be sitting together. The number of students will be confined in your classrooms. All safety measures the school is taking. Classrooms are being sanitized. And a few days back, जैसे पहले होता था, मैम, हमारे जी साइड हाँ। में बैठेगा। एक मिनट, सक्षम क्या कह रहे हो बेटा? मैम ऐसा नहीं होगा इस बार। मैम मैम पहले हमारे साथ कोई बैठता था, इस बार नहीं, तो अब ऐसा कोई नहीं नहीं होगा बैठेगा। ना। नहीं, you will be sitting all alone, single। ये हो सकता है ओके कि ये हो सकता है कि आपके साथ 2, जैसे 9th और 10th के बच्चे एक साथ बैठे, बट देन 12 स्टूडेंट्स इन टोटल, 6 9th के 6 12th के, या अगर 18 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मैम लाइक दैट वन मैम, लास्ट पेपर ऑफ 7th। विच क्लास? मैम 7th क्लास लास्ट एग्जाम। हाँ, मैम because in the हाँ, last exam ma'am there was a news that ma'am of COVID, so हाँ, ma'am it was fully social distancing. हाँ, you are right, something like that only, so that way only. Ma'am, Ma'am, we I have done seen a 20 reel questions in of that which the worksheet. student says मेरा नाम क्या था, then now it is in which class do I study, and then
तो वो तो कोई And नहीं, then- टीचर्स विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. Okay, can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think this worksheet we were doing. No, ma'am. Then Ma'am, we were doing another worksheet, ma'am. Ma'am, in which, ma'am, there were 20 questions. चलो तो कोई बात नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे उसको, वो मंडे को कर लेंगे, ठीक है. अब वो वाला क्वेश्चन, एक्चुअली वो वर्कशीट आई एम नॉट एबल टू फाइंड वेयर इट हैज इट डिसअपीयर्ड. तो ये वाला एक वर्कशीट है जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो अलग अलग टॉपिक्स के जो है क्वेश्चंस हैं. तो आप चाहो तो ये वाला कर लो, मुझे लगता है ये ज्यादा इजी रहेगा करना. इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों है आपके पास करने के लिए. Ma'am, so we have to do this in Ma'am, rough which नहीं, notebook फेयर is- नोट बेटा, फेयर नोटबुक में करेंगे, रफ में क्यों करेंगे बच्चे? Ma'am, No, we ma'am, can in, history में तो हो ही नहीं पाया. geography- हाँ, Ma'am, we would, ma'am, but in history it can't be done, ma'am. Ma'am, because history has both sided plays. तो आप ऐसा करो, हिस्ट्री के यू डू only 8 questions of history and 6 questions of geography you do. Ma'am, please show first question of geography. हाँ, first question it is showing on the screen. Mention any 2 features of the northern plains. Ma'am, you have to write the questions. Any questions I will share on the class group. ठीक है, I'll share the question on the class group. You only do the answers. Or shall we discuss them instead of writing? You people writing, let us discuss. Ma'am, we can discuss. Yes, ma'am. Ma'am, we can No, discuss. ज़्यादा But better it would ma'am. take very much time. होगा कि हम क्लियर भी हो जाएंगे डाउट्स हमारे, ठीक है. चलिए, so those Ma'am, but I have written revision in the date. लिख लो, ये तो करना तो है ही. आई विल बी शेयरिंग द क्वेश्चंस विद यू, नो. तो ये क्वेश्चंस अब जब हम शेयर करेंगे तो नोटबुक में तो आपको करना ही है इनको, Okay. ठीक है. चलिए, Yes. there are total 15 in the class, right? Excluding me. Yes, ma'am. चलिए, so let us have Anokhi answering the first question. Any 2 features of the northern plains? Yes, ma'am. Ma'am, may I tell? Let her tell, no issues. Ma'am, they are very fertile. Yes. Ma'am, and they are good for agriculture. ठीक है. Other than these 2 features, Parush? Ma'am, ma'am, it consists of 3 major rivers. Ma'am, Indus, Ganga, and Brahmaputra. ठीक है. Jivyansh? Ma'am, it spreads over an area of 7 lakh kilometers. And ma'am, this plain is formed of alluvial soil. This, Ma'am, may I tell? yes, Taran? Ma'am, these plains are mainly drained by perennial rivers. No, northern plains. Sorry, ma'am, seasonal rivers. Seasonal rivers. नहीं, what did you say? एक मिनट, दोबारा बोलो. You said Ma'am, these peninsular. plains. You said peninsular or perennial? No, ma'am, perennial. हाँ, ठीक है. These are drained by the perennial rivers. ठीक है, एकदम सही है. Ma'am, seasonal rivers are in south. The seasonal are for Plateau the region. peninsular region. हाँ, they are for the peninsular region. ठीक है. Okay, very good. चलिए. How many features we have done? I think 5 features we have done. No, Yes, ma'am. fine. चलिए. Yes, ma'am. Anvesha, second question.
Why is Himadri mountain range named so? Why is Himadri mountain ranges that we have named so? इनको हिमाद्री क्यों कहा जाता है? Shivansh Pal will tell. Shivansh? Ma'am, because it is most continuous range consisting of loftiest peaks of the whole Himalayan mountains. नहीं, हिमाद्री का एक रेलेवेंस है. Anybody who knows? Shivendra, Saksham, Aryan. Ma'am, Ma'am, it consists of ma'am, snowy it- mountains. Wait. it contains snow the whole year. Ma'am, Huh? because it is covered with snow the whole year. Yes, because it is covered with snow throughout the year. That is why it is known as Himadri, abode of snow. Right? Right, class? Yes, ma'am. चलिए. Yes, ma'am. Next is Yes, ma'am. mention a characteristic feature of Himadri. अब इसमें वो Ma'am, may I आएगा जो tell? शिवांश ने बताया. शिवांश, आपने क्या बताया था? Can I tell? Ma'am, it is the most continuous range and consists of the loftiest peaks of the Himalayan mountains with an average height of 6,000 meters. Very good. This can be one characteristics of the Himadri. Ma'am, it contains famous hill stations also. Yes. Very good. ठीक है, ये हो गया. Now, what do you mean by lesser Himalayas? बेटा अन्वेषा, आप अब दोबारा से ज्वाइन कर लो बेटा. पता नहीं क्या ये जूम का ही कोई ग्लिच है, बच्चे बेचारे बड़े परेशान होते हैं इस चीज से. डू वी हैव अथर्व इन द क्लास? Yes, ma'am. चलिए अथर्व, बताइए इसका आंसर. व्हाट डू यू मीन बाय लेसर हिमालयाज? Ma'am, the lesser Himalayas are also known as Himachal. Ma'am, they form the most, ma'am, it consists very well-known hill stations. Okay, and what is the location of these lesser Himalayas? Ma'am, they lie to the south of Himadri. They lie south of the Himadri. Very good. Next. Ma'am, we can write that they lie below the greatest Himalayas. नहीं, below the south of Himadri भी आप लिख सकते हो. Why are Shivaliks more prone to earthquake and landslides? Anybody in the class? Ma'am, Ma'am, as because they are form of Beta, Ishi, alluvium. sediments. Okay, let Ishi tell. Ishi, come again. Start again. Ma'am, as it is composed of unconsolidated sediments. It is made up of unconsolidated mud, sediments, and rocks. That is why it is more prone to earthquakes and landslides. Shivendra? Ma'am, what is the meaning of prawn here? Ma'am, I was saying the same thing. अच्छा, जहाँ पे frequently आता है, मतलब उस जोन में आता है जहाँ पे earthquake और landslide बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है? Okay, ma'am. Next question. Mention the extent of northern plains of India. Northern plains का extent क्या है? Ma'am, it is Ma'am, 2,400 kilometer long. हाँ? and 240 Ma'am, this plain is about 40 Ma'am, 2,400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad. हाँ. yes, Ma'am, it spreads over the area of 7 lakh square 7 lakh kilometers. square Yes. meters. The northern plains, the extent of northern plains is that it Kilometer. is spread over an area of 7 lakh square kilometers. Square of- kilometers. And the length is 2,400 kilometers and breadth is 240 to 320 kilometers. Right? Yes, ma'am. चलिए. ज्योग्राफी की और पूछ ले कि हिस्ट्री पे आ जाएं. Ma'am, history. हिस्ट्री पे आ जाएं. Ma'am, geography. Ma'am, geography. Ma'am, geography. Ma'am, हिस्ट्री पे ही आ जाइए मैम. Geography दोनों का में- रिवीजन हो जाएगा. हाँ. मैम, हिस्ट्री कर लीजिए, दोनों का रिवीजन हो Ma'am, जाएगा. geography. ज्योग्राफी में बहुत वर्कशीट्स हो चुकी हैं. चलो ऐसा कर लेते हैं. तो एक्चुअली ज्योग्राफी में ये जो आपका सेकंड चैप्टर है वो इतना ज्यादा डिटेलिंग वाला है, उसमें इतनी सारी चीजें हैं
कि जब हम क्लास में जब हम बुक पढ़ते हैं तो हम इतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते, जब क्वेश्चंस हम उसमें से बना के बताते हैं, पूछते हैं, तब हमारा अल्टीमेटली जो है जो हमारा ध्यान है वो चला जाता है कि हाँ ठीक है, दिस वाज आल्सो आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, तो इसको भी कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चंस और पूछ लेते हैं, फिर हिस्ट्री पे आ जाते हैं, ठीक है? Ma'am, in history, both the Yes, ma'am. chapters are coming. नहीं बेटा, Only chapter chapter 1 is French coming. Revolution. तो मैम आप सेकंड चैप्टर के बारे में बोल रहे थे ना, इसलिए। नहीं, हमने कहा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है? Ma'am, in geography. Okay, ma'am. Ma'am, because history has very minute details. Even geography has minute details. अच्छा, अगर हम आपसे पूछें what do you mean by बुंदेलखंड and बाघेलखंड, बताओ। Ma'am, they are the local names for. Ma'am, they are the names Ma'am, for are the the pla- Malabar Plateau. हाँ, Ma'am, they are the names for they the are the Central local names Highlands. for the Malabar Plateau. they are the name for the, Ma'am, what is the sixth answer? बेटा 6 का Ma'am, आंसर था 24. 700 Ma'am, they are also ma'am, they are a name for Central Highlands. Ma'am, they are the eastward extensions of Ma'am, the they are Central eastward Ah. extensions of the Ma'am, they plateau. are. Central Highland, Ma'am, they are the exactly. influences of Plateau. Exactly. Yes, ma'am. The eastward extensions of the Central Highland is known as बुंदेलखंड and बाघेलखंड, ठीक है? Ma'am, I mean that history Yes, is extremely tough. नहीं, Ma'am, Ma'am, French but Revolution is easy. history doesn't But have. ma'am, Russian Revolution is tough. Yes, ma'am. Ma'am, but Yes, World ma'am, War. I agree. हाँ, Yes, ma'am, I also agree. चलिए, Ma'am, but rest. Ma'am, second and third chapter easy. चलो तो ज्योग्राफी। And second is Russian Revolution. बेटा एक्चुअली ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है और जो आपका रशियन रेवोल्यूशन है और हिटलर जो है, इसकी अगर आप मूवीज देख लोगे ना कुछ एक, तो आपको ये एक स्टोरी की तरह लगने लगेगी। देन यू डोंट हैव टू लर्न थिंग्स, वो आपको अल्टीमेटली इवेंट्स वन बाय वन आप इवेंट्स उसको के तौर पे आप उसको देख सकते हो। हम इसको एक्चुअली पढ़ाई की तरह पढ़ते हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये, बट अगर आप इसको मैम लेकिन जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन जैसे चैप्टर्स रखते हैं तो उसकी जगह और भी इवेंट्स होंगे, वैसे भी चैप्टर्स रख सकते हैं, तो यही दोनों इतने इम्पोर्टेंट है। हाँ, बस ये है कि थोड़े बहुत डीप डिटेलिंग वाले चैप्टर्स हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। चलो कोई नहीं। मैम बट फ्रेंच बट फ्यूचर में इससे हेल्प क्या मिलेगी? रिलेटेड है। क्या शिवांश आप क्या कह रहे हो? फ्यूचर क्या? मैम जैसे फ्यूचर में जैसे इन सब की हेल्प क्या मिलेगी इन सबसे, ये जो होते हैं हमारे रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच मैम फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन वी लर्न जो हम आज राइट्स वो एंजॉय कर रहे हैं वो कहाँ से आए थे। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। देखो बेटा, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये दो ऐसे रेवोल्यूशंस हैं जिन्होंने वर्ल्ड में लोगों के जो सोच थी, जो प्रैक्टिसेस थी उस टाइम पे, उनमें एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लाया था। आप सोचो, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुई होती तो शायद नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कभी आता ही नहीं, ठीक है? और अगर नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ये पॉलिटिकल राइट्स की बात भी कहीं नहीं उठती, ठीक है? पॉलिटिकल राइट्स की बात अगर नहीं उठती तो आप सोचो आज भी वही सारी प्रैक्टिसेस होती, सोसाइटी डिवीजन होता, किंगडम होती, किंगडम्स होती, रूलर्स होते, ठीक है? आप एज अ इंडिविजुअल आप देखो, फ्रांस में अगर हम बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस में नोबडी हैड राइट्स। आप सोचो, जब नेपोलियन आया एज अ रूलर, एज द एम्परर ऑफ द कंट्री, उसने लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दिया, राइट दिया। अदरवाइज एवरीबडी वाज द सब्जेक्ट ऑफ द किंग। मतलब अगर हम 100-50 लोग वहां रह रहे हैं, वी कंप्राइज द वी आर पार्ट ऑफ द किंगडम, बट वी वर नॉट हैविंग एनी राइट्स। मतलब जिस जमीन पर हम बैठे हैं, जिस जमीन पर हम सो रहे हैं, उस जमीन पे हमारा अधिकार कुछ नहीं था। वो हम वी वर कंप्लीटली ऑन द मर्सी ऑफ द गॉड, वी वर कंप्लीटली ऑन द मर्सी ऑफ द गॉड नहीं, सॉरी, ऑफ द रूलर। क्योंकि किंग अगर चाहता तो वो कभी भी हमें हमारी जगह से हटा सकता था, क्योंकि सब कुछ उसकी प्रॉपर्टी है। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, जब पॉलिटिकल राइट्स आए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब लॉज एग्जिस्टेंस में आए, लॉज पहले भी थे, बट वो लॉज जो थे, किंग्स थे वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाते थे,
ठीक है, जब लॉज आए तो लोगों ने रियलाइज करा कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भाई ड्यूटीज, हम ये कहते हैं ना फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, जब आपको कोई राइट दिया जाएगा तभी तो आप अपनी ड्यूटीज के प्रति जो है सचेत रहेंगे, तभी तो आपको ये रहेगा कि भाई आपके कुछ मतलब यू आर बाउंड टू सर्व योर कंट्री बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। अगर आपको आपका एक्सप्लॉयटेशन होते जा रहा है, आपको कोई राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो क्या आप आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में कभी कोई राइट आएगा जो है कंट्री के लिए? कुछ भी नहीं आएगा। यू विल नेवर लव योर कंट्री फॉर एनीथिंग। पर ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तभी जो है कंट्रीज, आप सोचो यूरोपियन कंट्रीज में तो रूलर्स ही हुआ करते थे, किंगडम्स ही हुआ करती थी बहुत पहले, ठीक है। और अगर राइट्स नहीं आते तो आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आती, ठीक है। दूसरी चीज, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ तो रशियन रेवोल्यूशन ने लोगों की सोच को बदला। जो सोच थी कि भाई किंग मोनार्की है, ये जो मतलब इक्वालिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था, सोशलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो कहीं से कहीं प्रेवलेंट नहीं था। पीपल नेवर फेल्ट कि भाई दूसरे सामने वाले को भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए या उनको भी कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। हमारे लिए जो काम कर रहा है वो हमारे लिए काम कर रहा है, तभी तो हम भी ग्रो कर रहे हैं। हमारा ग्रोथ किसकी वजह से? हमारा ग्रोथ हमारे वर्कर्स की वजह से। तो अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो ग्रोथ भी नहीं होगी। तो इन सोशलिज्म ने ये समझाया, रशियन रेवोल्यूशन ने ये समझाया कि सोशलिज्म अगर प्रेवलेंट होता है तभी कंट्री का भी भला होगा, because people teaches us about the dictatorship. That dictatorship is very bad and democracy is good. Exactly. ठीक है, तो ये चीजें, ये जो रेवोल्यूशंस है, आप देखो, आपने शायद, मुझे लगता है क्लास 3-4 में भी आपको टीचर्स ने कभी इनके बारे में बताया होगा। जब कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन या आपका रशियन रेवोल्यूशन या अमेरिकन वॉर्स, इन सब के बारे में you only told. अच्छा, नहीं था 4th-5th में किसी ने नहीं बताया होगा बेटा, याद नहीं होगा, वो अलग चीज हो गई। Ma'am, no ma'am, in 4th and 5th, ma'am, you only told, I think. Maybe. Not in 4th and 5th, but in 7th. I think. Ma'am, but in 4th you didn't teach us, ma'am. Ma'am 7th. Ma'am 6th. Ma'am, Sneha ma'am used to teach us in 5th. Sorry, in 4th. Yes, ma'am. 4th, जो 7th क्लास में अगर हमने बताया, तो ये रेफरेंसेस जो थे, ये हिस्ट्री के ऐसे इवेंट्स हैं बेटा, जो मतलब हिस्ट्री के उससे आप इसको हटा नहीं सकते हो, क्योंकि अगर ये हिस्ट्री में इसका रेफरेंस है तभी जो है बहुत सारी चीजें बच्चों को या लोगों को पता है। आप ये सोचो, अगर हमें रशियन रेवोल्यूशन के बारे में नहीं पता होता, अगर हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में नहीं पता होता, तो हमें राइट्स के बारे में भी नहीं पता होता। ये सब चीजों का जो आइडिया था, देखो उस टाइम पे, जिस टाइम पे रशियन रेवोल्यूशन हुआ या फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इंडिया existed as a country, but then India had no identity of its own. उसका कारण ये था कि भाई इंडिया पे बाहर के लोग आके जो है रूल कर रहे थे, गवर्न कर रहे थे उसको। यहाँ के लोगों को इनके खुद के कोई राइट्स थे ही नहीं। They were also at the mercy of the rulers. भाई मुगल्स आए, दिल्ली सुल्तान आए, ठीक है, आपके ये जो इन्वेडर्स थे, क्या थे वो, महमूद गौरी, मोहम्मद गजनवी, these were all invaders, ठीक है। ये आए, लूटपाट करके चले गए, पैसा वैसा सब यहाँ से छीन के चले गए। जब आते थे, कौन सा वो मोहम्मद गजनवी था जिसने 11 टाइम्स जो है वो अटैक करा था इंडिया पे, स्पेशली ऑन दैट 17 times. हाँ 17 ओनली, आई सेड नो। on सोमनाथ टेम्पल, हाँ, उसका मोटिव क्या था? जस्ट टू टेक अवे द वेल्थ ऑफ द कंट्री फ्रॉम हियर, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई इंडिया में बहुत वेल्थ है, और इतना ज्यादा वेल्थ है कि भाई अगर आप 50 बार भी अटैक करके लोगे तो वो नहीं जो है मतलब ड्रेन होगा। यहाँ के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थे या जो ट्रेडिशंस थे यहाँ के, वो कम्प्लीटली डिफरेंट थे फ्रॉम दी वर्ल्ड। आप देखो, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कितने टाइम तक हमें गवर्न करके रखा, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा, हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट करा, और अपने आप को जो है फ्लरिश करवा लिया। तो ये कहीं ना कहीं, अगर ये रेवोल्यूशंस और ये सब नहीं होती, अगर आप सोचो रशियन रेवोल्यूशन नहीं होती है ना, और अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये पॉलिटिकल राइट्स के बारे में नहीं आता, तो शायद हमारे कंट्री में ये अवेयरनेस भी नहीं होती इतनी। जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, ये लोग इतना ज्यादा जो है वो करते ही नहीं, मूवमेंट्स को लॉन्च ही नहीं कर पाते गांधी जी, क्योंकि भाई लोग अवेयर ही नहीं होते। पर ये लोग कहीं ना कहीं देवर अवेयर कि भाई ये सब चीजें गलत हैं, कॉलोनाइज नहीं करके रखना चाहिए। आप जिस लैंड को, आप जिस नेटिव लैंड को आप बिलोंग करते हो, उसमें एटलीस्ट सारे रिसोर्सेज पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपका राइट होना चाहिए, राइट? Yes, ma'am.
तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री पढ़ के ही समझ में आती है बेटा। आप देखो जैसे एक बहुत छोटी सी चीज है, व्हेन आई वाज इन स्कूल माय मदर वाज ऑलवेज, शी यूज्ड टू बी माय आफ्टर माय लाइफ कि बेटा एग्जाम दे के आए हो, गलतियों को एक बार लिख लो नोटबुक में। तो आई यूज्ड टू बी सो फ्रस्ट्रेटेड। मैंने कहा मम्मी एग्जाम दे के आए हैं, आप तो पीछे पड़ जाते हो कि लिखो 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 लिखो। तो शी यूज्ड टू टेल मी कि बेटा जब तक आप अपनी गलतियों को लिखोगे नहीं, आप उसको दोबारा से वही चीज गलती करके आओगे एग्जाम में। तो हम कहते थे कि अरे नहीं हो गया, अब दोबारा नहीं आएगा एग्जाम में। बट शी ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट कि वो मुझे क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करवाएं दोबारा घर आके। लाइक एक ये डबल एग्जाम होता था हमारा। घर स्कूल में तो हमने करा ही करा, घर आके आफ्टर एग्जाम्स वो तो पूछती थी, वो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। पर बाद में शी यूज्ड टू मेक ऑल 4 ऑफ अस रीडू आवर पेपर कि देखो अब तुम्हारी क्या गलती है। व्हेन यू विल गेट योर आंसर शीट्स तो कंपेयर करना कि कहाँ पे आपने क्या गलती करी, सो दैट इन फ्यूचर यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। तो कभी कभी हम लोग को बड़ा गुस्सा आता था कि एक तो स्कूल में टीचर्स इतना ज्यादा दुखी करते हैं, ऊपर से घर में मम्मी जो है बार बार लिखवाती है कि लो बेटा लिख के देखो लिख के देखो। मैम प्लस होमवर्क। नहीं होमवर्क हम लोग के टाइम पे होता था, बट रिटर्न मतलब ये चीज थोड़े से बर्डन हमें लगती थी। होमवर्क तो चलो फिर भी चलो समझ में आता है, वो मतलब बड़ी रेगुलर पार्ट ऑफ दी जो है स्टूडेंट्स लाइफ है। बट दोबारा से पेपर को सॉल्व करो, फिर गलती करी दोबारा से करो। इमेजिन शी यूज्ड टू टेल अस टू सॉल्व ऑल दी मैथ्स प्रॉब्लम्स विदाउट लुकिंग इनटू द बुक, विदाउट नोइंग एनीथिंग। शी यूज्ड टू टेल कि नहीं करो, जब तक आप बिना देखे आपका करेक्ट नहीं आ रहा है, आप कहाँ गलती कर रहे हो उसको जो है पकड़ो पहले। आप फॉर्मूला गलत डाल रहे हो, आपकी कैलकुलेशंस में गलती हो रही है। बिकॉज जैसे लाइक आई यूज्ड टू डू वेरी क्विक कैलकुलेशंस, तो मेरी हमेशा कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स होती थी। तो शी यूज्ड टू बी आफ्टर माय लाइफ कि बेटा क्या करते हो, ये कैलकुलेशंस गलत करोगे तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। एट टाइम्स जब बहुत छोटी थी मैं, तो मैं नंबर्स गलत नोट कर लेती थी। जैसे जो उसमें प्रॉब्लम में जो नंबर्स दिए हो रहते थे, वो नंबर्स गलत कॉपी में नोट डाउन कर लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। होता है नहीं होता है? तो यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव। एंड शी वांटेड अस टू लर्न दीज थिंग्स ओनली। उनका जो मोटिव था वो ये था कि हम जब लिख रहे हैं तो हम कितना अटेंटिव होके लिख रहे हैं। और जब हम गलती करते थे तो शी यूज्ड टू टेल कि देखो बेटा मेरा मोटिव तुम लोगों को एक्सप्लॉइट करना नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि जो आप गलती कर रहे हो वो कितनी बार रिपीट कर करके लिख रहे हो आप, इसका मतलब आप कंसंट्रेशन से नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जो आप लैक कर रहे हो। तो ये चीजें बहुत बाद में समझ में आई। उस समय बड़ा गुस्सा आता था, लगता था क्या है मतलब अब हम खेलने भी ना जाए, अब एग्जाम देके हटे तो अब दोबारा से पेपर को सॉल्व करो, दोबारा से चीजें वही सब करो। बट ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही बेनिफिशियल होती है। हाँ जी सक्षम। Ma'am, answer of what is Bundelkhand and Bundelkhand is that no, ma'am, they are the eastward extension of सेंट्रल हाईलैंड्स। ma'am central line. Okay, हाँ ma'am. जी हाँ मैम जी सेंट्रल है। हाँ ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब हम ऐसा करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारी 3 क्लासेस लगेंगी, ठीक है। और आई थिंक थर्सडे को आपका एग्जाम है ना, 17। Ma'am, Friday. मैम ऑन फ्राइडे, ठीक है। मैम फ्राइडे। तो हमारी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 क्लासेस तो होंगी होंगी। तो हम ऐसा करेंगे, इन तीनों क्लासेस में रिटर्न वर्क नहीं करेंगे, बट इस तरीके के ओरल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। उससे आप लोग को कम टाइम में ज्यादा चीजें यू विल कम टू नो, राइट। Yes, ma'am. And ma'am, can you Okay, send the ma'am. PDF of this worksheet on the group? I am sending beta, as soon as the class will get over I'll send the PDF, ठीक है। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, we have to do this in notebook. हाँ बेटा करना है, नोटबुक में कर लीजिएगा। एनी टाइम द मीटिंग इज गोइंग टू एंड, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड डू अटेंड द क्लासेस ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सो दैट वी कैन लर्न राइट मोर। Yes, ma'am. Thank Okay, you, ma'am. ma'am. चलो Thank you, ma'am. ओके बेटा। Thank you, ma'am. थैंक यू बेटा। Thank you, Bye, ma'am. ma'am. ओके बच्चे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।